بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6191۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صفیہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے انہیں کہا ہے یہودی کی بیٹی۔ وہ رونے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو وہ رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے کہا ہے کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک نبی کی بیٹی ہو، تمہارا چچا بھی نبی اور تم نبی کی اہلیہ بھی ہو، وہ کس بارے میں تم سے فخر کرتی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ اللہ سے ڈرتی رہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6192۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے سرگوشی فرمائی تو وہ رو پڑیں، پھر ان سے کوئی بات کی تو وہ ہنس پڑیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو میں نے ان کے رونے اور ان کی ہنسی کے متعلق ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میں فوت ہو جاؤں گا، تو میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ مریم بنت عمران کے علاوہ اہل جنت کی خواتین کی میں سردار ہوں، اس پر میں ہنس دی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6193۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جب بھی کوئی حدیث مشتبہ ہو جاتی تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کرتے تو ہم اس کے متعلق ان کے ہاں علم پاتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6194۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، میں جنت میں جس جگہ جانے کا قصد کرتا ہوں تو وہ مجھے اڑا کر وہاں لے جاتا ہے۔ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے اس کا ذکر کیا تو حفصہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بھائی نیک آدمی ہے، یا فرمایا عبداللہ نیک آدمی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6196۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، چال ڈھال اور سیرت و ہدایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے گھر سے نکلنے سے لے کر واپس گھر جانے تک یہی صورت رہتی ہے۔ جب وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں تو معلوم نہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6197۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اور میرا بھائی یمن سے واپس آئے تو کچھ مدت تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ایک فرد ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا اور ان کی والدہ کا بکثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا ہم دیکھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6198۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 حضرات عبداللہ بن مسعود، ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل سے قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6199۔ حضرت علقمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں شام پہنچا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی، اے اللہ مجھے کسی صالح ساتھی کی ہم نشینی نصیب فرما۔ میں لوگوں کے پاس آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا، چنانچہ ایک بزرگ آئے اور وہ میرے پہلو میں بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے بتایا، ابو الدرداء ہیں۔
मैंने कहा, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि वो मुझे किसी सालेह शख्स की हमनशीनी नसीब फरमाए, तो उसने मुझे आपकी हमनशीनी अता फरमाई। उन्होंने मुझसे पूछा, आप कौन हैं? मैंने कहा, कूफी हूँ। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे यहाँ इब्ने उम्मे अब्द यानी अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु साहिबुन नालैन साहिब वसादा व मुताहरा नहीं है? और तुम में वो भी हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने नबी की दुआ के जरिए शैतान से पनाह दे दी है, यानी अम्मार बिन यासिर। क्या तुम में राजदान नहीं है? इन राजों को उनके सिवा कोई नहीं जानता, यानी हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 6200। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जन्नत दिखाई गई। मैंने अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु की अहलिया देखी और अपने आगे बिलाल के जूतों की आवाज़ सुनी। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 6201। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हम 6 अफराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इन लोगों को यहाँ से दूर कर दो और ये हमारी मौजूदगी में आने की जुर्रत ना करें। रावी बयान करते हैं, इनमें मैं, इब्ने मसऊद, हुज़ैल कबीले का एक आदमी, बिलाल और 2 आदमी और थे जिनका मैं नाम नहीं लेता। अल्लाह ने जो चाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया और आपने अपने दिल में कोई बात सोची तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, आप इन लोगों को दूर ना करें जो सुबह शाम अपने रब को उसकी रजामंदी के हुसूल के लिए पुकारते रहते हैं। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 6202। हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, अबू मूसा, आपको आले दाऊद की सी खुशलहानी अता की गई है। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 6203। हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में 4 अफराद ने कुरान को जमा कर लिया था। उबई बिन काब, माज बिन जबल, जैद बिन साबित और अबू जैद रजी अल्लाह अन्हु। अंस रजी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, अबू जैद कौन है? उन्होंने फरमाया, मेरे एक चचा है। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 6204। हजरत खबाब बिन अर्थ रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की। हम अल्लाह की रजामंदी चाहते थे, चुनाचे हमारा अज्र अल्लाह के यहाँ साबित हो गया। हम में से कुछ जल्द वफात पा गए और उन्होंने अपने दुनियावी अज्र से कुछ न पाया। मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु भी इन्हीं में से हैं। वो ग़ज़वा उहुद में शहीद हो गए थे। उन्हें कफन देने के लिए सिर्फ एक धारीदार चादर मुयस्सर आई। जब हम उनका सर ढांपते तो उनके दोनों पाँव नंगे हो जाते और जब हम उनके दोनों पाँव ढांपते तो उनका सर नंगा हो जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे उनका सर ढांप दो और उनके पाँव पर घास डाल दो। और हम में से वो भी हैं कि उनके लिए फल पक चुके हैं और वो उन्हें चुन रहे हैं। मिशकातुल मुसाबीह हदीस नंबर 6205। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात पर अर्श हिल गया था। एक दूसरी रिवायत में है, साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु की मौत पर रहमान का अर्श हिल गया था। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 6206। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रेशमी जोड़ा बतौर हदिया पेश किया गया तो सहाबा उसे छूने लगे और उसकी मुलायमियत पर ताज्जुब करने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसकी मुलायमियत पर ताज्जुब करते हो। साद बिन माज के जन्नत में रुमाल इससे ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा मुलायम है। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 6207। हज़रत उम्मे सलीम रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु आपका खादिम है, इसके लिए अल्लाह से दुआ फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, इसके मालो औलाद में इजाफ़ा फरमा और तूने जो इसे अता फरमाया है उसमें बरकत फरमा। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मेरा माल बहुत ज़्यादा है और आज मेरे बेटे और मेरे पोते 100 से ज़्यादा हैं। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 6208। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाहु अन्हु के अलावा रूए ज़मीन पर चलने वाले किसी और शख्स के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए नहीं सुना कि वो अहले जन्नत में से है। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 6209।
कैस बिन उबाद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं मदीना की मस्जिद में बैठा हुआ था कि एक आदमी आया, उसके चेहरे पर खुशू के आसार थे। हाजरीन ने कहा, यह आदमी अहले जन्नत में से है। चुनाचे उसने इख्तिसार के साथ 2 रकतें पढ़ीं, फिर वो चला गया। मैं उसके पीछे पीछे गया तो मैंने कहा, जिस वक्त आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए थे तो लोगों ने कहा था कि ये आदमी अहले जन्नत में से है। उस आदमी ने कहा, अल्लाह की कसम, किसी शख्स के लिए मुनासिब नहीं कि वो ऐसी बात कहे जिसे वो जानता नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसे क्यों है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख्वाब देखा तो मैंने उसे आपसे बयान किया। मैंने देखा कि गोया मैं एक बाग में हूँ। उन्होंने उसकी वसअत और उसकी शादाबी का जिक्र किया। उसके वस्त में लोहे का सुतून है, उसका निचला हिस्सा ज़मीन में है और उसका ऊपर वाला हिस्सा आसमान में है। उसकी चोटी पर एक हल्का या कड़ा है। मुझे कहा गया, इस पर चढ़ो। मैंने कहा, मैं इस्तिताअत नहीं रखता। मेरे पास एक खादिम आया, उसने पीछे से मेरे कपड़े उठाए तो मैं ऊपर चढ़ गया। हत्ता कि मैंने इसकी चोटी पर पहुंचकर हल्के को पकड़ लिया। मुझे कहा गया, मजबूती के साथ पकड़ लो। मैं उसे पकड़े हुए था कि मैं बेदार हो गया। मैंने इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बाग इस्लाम है, वो सुतून इस्लाम का सुतून है और वो हल्का मजबूत हल्का है। तुम तादम मर्ग इस्लाम पर रहोगे। और वो आदमी अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु थे। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 6210। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, साबित बिन कैस बिन शम्मास रजी अल्लाह अन्हु अंसार के खतीब थे। चुनाचे जब ये आयत नाजिल हुई, ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो, तो साबित रजी अल्लाह अन्हु अपने घर में बैठ गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आना बंद कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, साबित रजी अल्लाह अन्हु का क्या मामला है, क्या वो बीमार है? साद रजी अल्लाह अन्हु उनके पास आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उन्हें बताई तो साबित रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये आयत नाजिल हुई है और तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरी आवाज़ तुम सबसे ज़्यादा बुलंद होती थी, लिहाजा मैं जहन्नुमियों में से हूँ। साद रजी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि वो अहले जन्नत में से है। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 6211। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, जब सूरह जुमा नाजिल हुई तो हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। जब ये आयत नाजिल हुई, व आखिरीना मिनहुम लम्मा यलहक़ू बिहिम, तो हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इनसे कौन लोग मुराद हैं? रावी बयान करते हैं, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे दरमियान मौजूद थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु पर अपना दस्ते मुबारक रखा और फरमाया, अगर ईमान सुरैया पर भी होगा तो इनमें से कुछ लोग उस तक पहुँच जाएंगे। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 6212। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, अपने इस बंदे यानी अबू हुरैरा और उनकी वालिबा को अपने मोमिन बंदों का महबूब बना दे और मोमिनों को इनका महबूब बना दे। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 6213। हज़रत आयस बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हों से रिवायत है कि अबू सुफियान, सलमान, सुहैब और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हुम के पास से गुजरे। इस वक्त और सहाबाए किराम भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, अल्लाह की तलवारों ने अल्लाह के दुश्मन की गर्दन से अपना हक़ वसूल नहीं किया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या तुम ऐसी बात कुरैश के सरदार और मोतबर शख्स के बारे में कहते हो? फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, शायद तुमने उन्हें नाराज़ कर दिया है। अगर तुमने उन्हें नाराज़ किया तो तुमने अपने रब को नाराज़ किया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पास आए और कहा, भाइयों, क्या मैंने तुम्हें नाराज़ कर दिया है? उन्होंने कहा, नहीं भाई, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 6214। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत ईमान की अलामत है और अंसार से अदावत निफाक की अलामत है। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 6215।
हज़रत बरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अंसार से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करता है और अंसार से सिर्फ मुनाफिक ही अदावत रखता है। जिसने अंसार से मोहब्बत की अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा और जिसने अंसार से अदावत रखी अल्लाह उससे अदावत करेगा। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 6216। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं, जब अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुवाज़न के माले गनीमत में से अता फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के 9 मुस्लिम अफराद को 100 ऊँट देने लगे, तो अंसार के कुछ लोगों ने कहा, अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फरमाए, वो कुरैशियों को देते हैं और हमें छोड़ देते हैं, हालांकि हमारी तलवारों से उनका खून अभी टपक रहा है। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाया और एक चमड़े के खैमे में जमा किया और उनके अलावा किसी को अंदर ना आने दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे मुताल्लिक मुझे क्या बात पहुंची है? अंसार के समझदार लोगों ने अर्ज़ किया, हमारे बड़े तो खामोश रहे, चंद 9 उम्र लड़कों ने ऐसी बात कही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं कि लोग मालो दौलत ले जाएं और तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घरों में ले जाओ? उन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, हम राज़ी हैं। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 6217। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हिजरत ना होती तो मैं अंसार में से एक आदमी होता। अगर लोग एक वादी में चलें और अंसार दूसरी वादी में तो मैं अंसार की वादी में चलूँगा। अंसार अंदर का लिबास हैं और लोग ऊपर का लिबास हैं। तुम मेरे बाद तरजीह देखोगे, सब्र करना यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मुझसे मिलो। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 6218। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं, फ़तह मक्का के दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए वो अमन में है और जो हथियार डाल दे वो अमन में है। अंसार ने कहा, इस शख्स को अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत और अपने शहर की मोहब्बत ने पकड़ लिया है। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने कहा है कि इसे अपने रिश्तेदारों और अपने शहर की मोहब्बत ने पकड़ लिया है। सुन लो, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। मैंने अल्लाह और तुम्हारी तरफ हिजरत की है। मेरा जीना और मेरा मरना तुम्हारे साथ है। अंसार ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, हमने ये बात सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में कही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी तस्दीक करते हैं और तुम्हारा उज़्र कबूल करते हैं। मिशकातुल मुसाबीह हदीस नंबर 6219। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के कुछ बच्चों और ख़वातीन को किसी शादी की तकरीब से वापस आते हुए देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर फरमाया, ए अल्लाह, तू जानता है तुम तमाम लोगों से ज़्यादा मुझे महबूब हो। ए अल्लाह, तू जानता है तुम यानी अंसार तमाम लोगों से ज़्यादा मुझे महबूब हो। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 6220।